give shout out to people on my feed or through my post or event, and that too from Pakistan. That is very like rare. But somebody is like joining us, and he is somebody who has power in his words, and I'm really deeply inspired by his post, and I think such people deserve a highlight. So let's just welcome Sami with us, and he will be answering all of your questions regarding scaling your copywriting career and stuff. Hi Sami, Hi, thank you so much for the introduction. how are you doing? How are you feeling? Uh, I'm okay. I'm good. You are It's good? great. Yeah, Yeah. So actually, the reason why I reached out to you was that I read a post where you mentioned how writers should charge in on-site jobs. Like you right. literally classified the like their experience and the money they should charge to people. That was something that I found very like insightful, because it is something I said last year in my interviews, in my events, and I have been saying this regularly in my post. And I never see somebody who is doing the same. So you are the only person who literally did that on your post. So that was something that clicked in mind, and I thought we should, like, people who know the industry, who know how system is working, who know the prices, they should protect other people from exploitation. And I think you did that through your post. So kudos you for that thing. Thank you so much. Okay, so let's tell our listeners what they should charge if they are beginners or have some like intermediate experience, or what type of jobs they should do and stuff. Because like you can give the overview of the post you have written. Sure thing. So basically, the problem that we face as writers and for other professions as well in this industry is that we are not sure what should we charge, because our industry overall, because of our currency, pays very low to all sorts of professions. So when we go to Fiverr or Upwork and we see what kind of rates people are charging as freelancers, and that, by the way, are charged in dollars. So from that comparison, what we get here working in local agencies is more like peanuts. So that's where a confusion starts to come, that what should be my price. And frankly speaking, if I wanted to put down rates that I think every writer deserves, that post would have gotten it would have been very impractical, because I have to a lot of people came in the post and they said that you asked a copywriter not to charge anything less than 1.5 lakh rupees. So from my point of view, that's even too low. And that's what I Yeah, said to them. of Yeah, course, of course. and that's what I said to them. Yes, I understand that copywriters are charging way more than this amount of money, but I cannot preach that to Obviously. everyone. That's not for everyone. That's for a certain skill level or certain experience. That amount of money can be charged in that regard, and operating in a certain market. In Pakistan, if I if I preach someone to go and ask for, let's say, 5 lakh rupees or 4 lakh rupees straight away in a job, that would be impractical. They wouldn't even get a follow up on that sort Exactly. of price. So I have to be Exactly. practical as well. That's Yeah. yeah, you can continue. Yeah, that's what I had to say, that you have to be practical and you also have to be getting the best out of what you can. It's not that you will always get what you deserve, but seeing the circumstances and the scenarios you are operating in, you have to make the best choice. Exactly, exactly. I second that thought, because when I was like waiting for my university admission, so I have like big amount of time. Like I can easily see I have 9 months straight to like get into the university. I have like I'm a student. Like I passed my exams during COVID, so I have some time for the results and stuff. So I tried to land a job, or I must say I wanted an internship in the corporate sector or like in office environment. And I attended interviews, and I just quoted them my price and stuff, and they will literally never ever respond me back, just because I quote something that they don't like consider me, or like they don't consider paying it to me. And they have that thing in my mind that if somebody, and if he's a writer and he's doing an on-site job, there is limited budget for that, not above them 30,000 or 40,000, that too to the experienced person. So that is really like there's something very, I would say, miss in the industry and in the people mindset, to the people who are hiring, and in the people who are like willing to apply to the jobs. They have the mindset that they cannot get this enough money. Even when I do one-on sessions, there are people who ask me, okay, do you think my client will literally pay me $300, or do you really think my client will pay me $500? Like they don't even consider themselves to that level. So that is a mindset we should, I think, change, because it is easy, it is very easy to like it is so easy just to like see the system or see things in like different mindset. So that's the thing that like you should be highlighted. Second, that I found like in my post and in my DMs, that if I am a writer and I am practicing and I am getting like
if I am like posting content on my like on my blogs and medium, do you think even if I am getting paid this much, like 30,000 and 40,000, do you think I should like apply to those software houses and I get some experience? Like, is it necessary is my writing in that sector Uh, so okay. I build my portfolio? Is it necessary? I think that hands-on experience in any industry is like mandatory. I believe that a lot of people might disagree, and they might be earning a lot of money, like, on freelance basis, and that's understandable. I'm not saying that that cannot happen. लेकिन जब आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हैंड्स ऑन वहाँ पे बैठकर, यू डू नॉट लर्न फ्रॉम यू नो यूट्यूब वीडियोस और लिंक्डइन के पोस्ट से आप उनसे नहीं सीखते, बट यू लर्न फ्रॉम रियल टाइम पीपल। उस वक्त जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो उनके तरीके कार है काम करने का, और जो उनसे आप इन पर्सन सीख सकते हैं ना, वो इन लाइक उसकी कोई आप प्राइस नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज अ गाय हु वाज आई यूज्ड टू वर्क विद, ही वाज माय बॉस। इनका नाम अहमद जुनैद है, एंड इनको आपकी कोई अपवर्क पे प्रोफाइल नहीं मिलेगी, कोई फाइवर पे प्रोफाइल नहीं मिलेगी, कोई इनकी लिंक्डइन के ऊपर कोई खासा प्रोफाइल नहीं मिलेगी। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्री के अंदर चीते लोग हैं ना, वो लिंक्डइन पे शायद बहुत सारे एग्जिस्ट भी नहीं करते। बहुत सारों के फाइवर पे कोई अकाउंट्स नहीं है, बहुत सारों की कोई फ्रीलांस सेटिंग नहीं है, बिकॉज़ वो अपने 9 टू 5 में व्हाटएवर रीजंस जो भी वो काम कर रहे हैं, उसमें वो इतना बिज़ी है दैट दे डोंट हैव द टाइम। ये लोग आपके एक्सेस में कभी आते ही नहीं है अनटिल अनलेस आप वहाँ जाके बैठ नहीं आते इनके पास और इनसे नहीं सीखते। तो मैंने ऐसे ही एक इंसान से सीखा जो पिछले 8-10 साल से लिख रहा था जब मैं वहाँ गया था। अब तो खैर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया और मैंने बुक्स पे स्टार्ट किया था, एंड वी हैड लाइक अ वेरी गुड रोल। हमने 72 बुक्स कंप्लीट करी। और उनका सीन ये था कि ही वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। वो बंदा लाइक एक दिन मैं बैठा हुआ था एंड ही वाज जस्ट रीडिंग अ बुक, लाइक वो लेजिट पेपर बैक बुक लेके बैठे हुए थे और कुछ पढ़ रहे थे। मैंने बोला आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? बोले यार ऐसी किताब आई है तो मुझे ये पढ़नी पड़ रही है। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार लोग इतने प्रैक्टिकल और इतने एक्सट्रीम मेजर्स पे जाते हैं सीखने के लिए। हालांकि ही वाज नॉट लाइक मैं अगर लिखूं, और आज भी ही इज द ओनली पर्सन जिनको मैं अपना काम भेजते हुए हेसिटेट, बिकॉज मुझे ये होता है कि मेरा काम ये पढ़ के भले दुनिया वाह वाह कर रही है, बट मेरा काम पढ़ के मुझे जो है ना एटलीस्ट ये हो कि हाँ, इनको ये ना हो कि यार तुमने इतने टाइम में अभी तक यहीं पे खड़े हो, आगे नहीं बढ़े। लाइक वो एक होता है ना, आपको जब मास्टर के सामने जब आप आते हैं तो आपके अंदर एक हेसिटेशन रहती है। ऐसे मास्टर्स आपको ऑन साइड बैठ के ही मिलेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करने से ही मिलेंगे, इंडस्ट्री में बैठने से मिलेंगे। फिर जो प्रेशर है, डेडलाइंस हैं, जो कुछ वहाँ बैठ के आप सहते हो ना, वो आपको बनाता है। हर चीज़ नुकसानदेह नहीं होती। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि Yeah, exactly. एक्सप्लोइटेशन जो है ना, वो एक्सप्लोइटेशन गलत है, लेकिन Of कुछ हद course. तक आपको जो है ना प्रेशर लेना पड़ता है, तब जाके आप बनते हो कुछ ऐसा जो आप फिर बात कर सकते हो, आपको बात करते हुए अच्छे भी लगते हो कि यार आप एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ अगर बोल रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, वही बात है ना कि कार्बन से डायमंड बनना, तो वो ऐसे Exactly, ही बन सकते exactly, हैं। तो उस चीज़ exactly. से गुजरना मैं समझता हूँ कि सबके लिए ज़रूरी है, व्हाटएवर फील्ड दे आर वर्किंग इन। या और ऐसा भी है कि वी कैन लाइक ज्वाइन एनी एजेंसी इवन लाइक इफ वी डोंट हैव चांस टू गेट द जॉब इन सॉफ्टवेयर हाउसेस, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वी apply to an agency, either it's like international firm or in Pakistan, so that you gain the same experience. But it would be like work from home, but as you mentioned कि कैपेसिटी होती है, एक वर्कलोड होता है, एक सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट होती है, ये सीखने को आता है। और मैं अपना बताऊँ तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो थी जो मेरे लाइक शी इज़ ऑल्सो माई लॉन्ग टर्म क्लाइंट, और 3 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए। आई गॉट हर फ्रॉम अपवर्क और वो एक एजेंसी है, ठीक है? तो स्टिल आई वाज़ लिटरली अ सिंपल एसईओ राइटर। शी वाज़ द वन हू लिटरली शार्पेंड माय स्किल्स। उन्होंने मुझे कॉपी राइटिंग सिखाई, उन्होंने मुझे घोस्ट राइटिंग सिखाई, उन्होंने मुझे दिखाया मार्केटिंग के लिए कैसे काम करते हैं, ब्रांड्स के लिए कैसे काम करते हैं। जो अलग हर ब्रांड की एक अलग विज़न होता है, तो हम एक ही वॉइस के साथ हर किसी के लिए नहीं लिख सकते। जो तुम्हारी स्किल है, वो हर किसी के लिए काम नहीं आ सकती। तो यू हैव टू मेक अमेंडमेंट्स इन योर स्किल। तो दैट इज़ आई लर्न फ्रॉम एजेंसी। तो लाइक फॉर ऑल पीपल हू आर लिसनिंग, इफ यू आर अ बिगिनर और यू वांट दैट एक्सपीरियंस, तो एक पर्सनल प्रोजेक्ट या एक वन टू वन जो क्लाइंट होता है, मे बी यू विल नॉट गेट दैट। तो इफ यू वांट टू हैव सम डाइवर्स एक्सपेरिमेंट एंड इफ यू वांट टू लाइक लर्न कि मुझे क्या काम करना है, मेरे लिए क्या इंटरेस्टेड है, मैं किसको एंजॉय कर रहा हूँ, मुझ में किसमें लगता है कि ज़्यादा लाइक आई कैन मेक मनी, सो यू हैव टू join an agency, or if you are like comfortable to get into an office environment, so you can join that too. So that's the case. Also the like question ke if we are like applying in this environment, and my quotation is something like 50,000 and above, and they are not paying me more than that, or they are not even paying me 30,000, so I can settle it or should I not settle it? What do you think? Should like you can negotiate in terms of hours, you can negotiate in terms of workload, but what to do if like they are not like accepting anything or any condition of yours, but you are also willing to do the job, so what do you do? देखिए, मैं आप लोग को एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बताता हूँ, जो कि साइकोलॉजिकल है प्योरली। ठीक है? वो ये है कि अगर आपकी गिवन प्राइस पे कोई एग्री नहीं कर रहा, और मैं एग्री नहीं करने का मतलब ये है कि इस तरह का डिसएग्रीमेंट कि यार आप जाओ, आप नहीं समझ में आ रहे हमें इस पैसों पे, तो कोई सवाल ही बन एक होता है ना बात करना, यार चलो 5-10 कम कर लो या 20 कम कर लो, वो Hmm. एक बात करना होता है। एक होता है कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद आपको कोई Hmm. फ़ॉलो अप भी ना है। दैट मीन्स के Exactly.
आप जब रूम में कदम आपने रखा था ना, तो आपका पहला कदम ही सही तरीके से नहीं रखा आपने। क्या मैं आपको एक हुँ। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पे बेवकूफ़ भी बनाते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी रियल। या सीवीज़ के या ऊपर लोग बहुत कुछ लिखते हैं और नहीं होता या असल में। हमें भी पता होता है कि जो सीवी में लिखा हुआ है ना, उसका 20% या 30% ही असली बंदे में है। समझने वाली एग्ज़ैक्टली। बात है। और वो एचआर या वाले भी बेवकूफ़ नहीं होते और जो एक्सपर्ट्स बैठे हुँ। हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं होते। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि यार लोग थोड़ा-सा प्रेज़ेंट जो करते हैं वो असली में नहीं होता, या अगर किसी ने कुछ प्रेज़ेंट भी किया हुआ तो वो 100% ऑल द टाइम वैसा नहीं होता। कभी उसपे बुरा टाइम भी आता है, कभी उसका बर्नआउट भी आता है, तो एग्ज़ैक्टली। ऊपर-नीचे ही है। अब आप बेसिकली जिस चीज़ के अंदर अपनी जो प्राइस मनवाते हो ना, वो बेसिकली आप वही होता है ना कि आप रूम में कैसे एंटर हो रहे हो, किस मेंटालिटी के साथ एंटर हो रहे हो, ठीक है? आप रूम के अंदर सबसे बड़े हो के नहीं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, कोई आपकी राइटिंग नहीं देख रहा वहाँ बैठ के, या आपने कोई भी राइटिंग उनको दी हुई है, दे डू नॉट हैव लाइक ज़ीरो इंटरेस्ट इन इट। वो अगर आपसे बात कर रहे हैं ना, तो दे आर जस्ट गोइंग टू सी कि ये बंदा अपने आप को कितने अच्छे तरीके से बेचता है। अगर ये अपने आप को अच्छा सेल कर सकता है, तो फिर ये किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को, बी2बी हो, बी2सी हो, बहुत अच्छे से सेल कर लेगा। हम जब रूम में जाके बैठते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं, जो हम ओपन टू नेगोशिएशन होते हैं, ठीक है? वहीं से हमारी प्राइस इवैल्यूएट होना शुरू हो जाती है। और हमें नहीं सही। पता होता है कि असल में तो सवाल आखिर में पूछा जाता है ना कि भाई हम तो इतना दे रहे हैं, या आपका क्या बजट है, और आप जो बजट बोल रहे हो तो उससे पहले की जो हिचकिचाहट होती है, ये जो आप टाइम लेते हो और जो आप ऐसे कोट करते हो ना, वो डिसाइडिंग मोमेंट नहीं हुँ। होता, डिसाइड शुरू से हो रहा होता है। आपका करना इंटरव्यू होता है जो है ना पहले से। क्रैक करना, बिल्कुल, आपका इंटरव्यू अगर आपने हुँ। सही से क्रैक किया ना, आप जो पैसा माँगेंगे ना आपको दिए जाएँगे। आपका इंटरव्यू एक मास्टर क्लास होना चाहिए उन सारे लोगों के लिए जो वहाँ बैठे हैं, ठीक है? अगर आपके इंटरव्यू से बैठ के वो अपने सिंपल सी बात है ना यार, तैयबा आप मेरे पास आएँगी, मैं आपको बोलूँगा अच्छा तैयबा ये चीज़ें मुझे बताएँ। आप जो मुझे आंसर्स देंगी, अगर उससे मुझे ये लगे कि अरे यार, ये बात जो बंदी कह रही है, ये सारे मसले तो मेरे कंटेंट में है, ये सारे मसले तो मेरी एजेंसी में हो रहे हैं। अच्छा, ये जो बात इसने मुझे कही है, ये तो हम गलत कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि जब आप अपने से बड़े बंदे के सामने बैठते हो और जब वो कुछ बता रहा होता है, तो आप उसके अंदर अपनी गलतियाँ देख रहे होते हो। अपने फॉल्ट्स आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कि हाँ यार, ये बात ये कह रहा है, ये तो सही कह रहा है और हम गलत कर रहे हैं। तब वो आपको वो पैसे देने के लिए तैयार होगा, जो पैसा आप अपने मुँह से माँगेंगे, क्योंकि आपकी इंटरव्यू बेसिकली उसके साथ जो है वो एक मास्टर क्लास से कम का नहीं है। उसने देख लिया एक झलकी कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ ना, उन गलतियों को पहचानता है और इनको सही करने की सलाहियत रखता है। इसी को अब मैंने हायर करना है, अभी मुझसे लाख रुपए माँगे, 1.5 लाख रुपए माँगे, 2 लाख रुपए माँगे, मैं इसको दूँगा। ठीक है? तो सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्किल सेट है, एक्सपीरियंस है, वही बात है कि आपने बहुत सारे फेलियर्स के साथ गुज़रना है, बहुत सारे फेलियर्स होते हुए देखने हैं, उनको समझना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, और आपने इसके साथ-साथ एलोक्वेंस, अ, अपनी जो सेलिंग पावर है थ्रू योर वर्ड्स, अपना बात करने का तरीक़ाकार, अपनी बात को रखने का तरीक़ाकार, यार आप कैसे राइटर हैं? मैं तो अभी राइटर्स की बात हो रही है ना, आप कैसे राइटर हैं अगर आप अपनी बात ही नहीं रख पाए? एक राइटर को तो सबसे अच्छा होना चाहिए अपनी बात रखने में। एक राइटर जब बात करे तो स्ट्रक्चर्ड वे में बात करे, ठीक है? बात इधर वो नहीं फ्लुएंसी और ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। उसकी लॉजिक जो आर्गुमेंट है वो लॉजिकल हो, कोहेरेंट हो, उसकी बात रखने का एक अंदाज़ हो, उसकी हर लाइन पंच लाइन हो, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं ना, हुक्स हो। वो हुक्स उसकी स्पीच में क्यों नहीं दिख रहे? वो बात को वज़न के साथ क्यों नहीं रख रहा? वो बिल्डअप करके वो एक पंच लाइन क्यों नहीं ड्रॉप कर रहा? आप पंच लाइन्स ड्रॉप कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपको मुँह माँगे पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं। तो ये सॉफ्ट और हार्ड स्किल्स दोनों के साथ-साथ आपने लेके चलना है, और ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ आप अपनी डेस्क पे काम करें बैठ के और अपने ड्राफ्ट पे काम करें। आप अपनी दूसरी साइड देखें, एज़ अ पर्सन एम आई सेलेबल और नॉट? तो ये सीन है। आई राइट, 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 राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है और मुझे लाइक इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी है, ये कि इफ वी आर लर्निंग कॉपीराइटिंग एंड इफ देयर इज समबडी हु इज लाइक प्लेसिंग हिज ऑफर कि भाई मुझसे कोर्स ले लो, मुझसे प्रैक्टिस कर लो, और देयर आर पीपल हु सेल कि भाई उनका कोर्स 50,000 से ऊपर है, 70,000 से ऊपर है। डू यू रिकमेंड न्यू बिगनर्स कि भाई यू हैव टू परचेज दैट टू स्केल? अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो आई हैव पीपल लिटरली इन माई डीएम जो मुझे कहते हैं कि आई हैव परचेज दिस कोर्स एंड दैट पर्सन शोड योर प्रोफाइल टू लर्न कॉपीराइटिंग और टू लाइक हाउ टू सेल योर सर्विस। आपकी प्रोफाइल वहाँ पे थी एंड ही वाज रेफरेंसिंग यू, तो हम आपके पास आ गए। तो हमने कॉपी राइटिंग 70,000 देकर सीख ली है, लेकिन हमारे पास क्लाइंट नहीं है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं उनसे पूछती हूँ कि जब अगर मैं अपनी मेरे पास वन वन सेशंस है, मेरी उसकी प्राइस है, और मैंने जिन जिन लोगों से सीखा है, वो मेंशन करते हैं कि द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग ऑन मी, जो भी पैसे तुम मुझ पे लगा रहे हो मेरे वन वन सेशन पे या मेरे कोर्स पर, तुम्हें 2 मंथ्स में 6 मंथ में वो वापस मिलेंगे। इफ ही गारंटीज दैट, तो फिर आप जो मतलब उसका कोर्स ले सकते हो। ठीक है? अब दैट गाय और दैट पर्सन हु इज सेलिंग कोर्सेज 1,70,000 50,000, और पीपल हैव दैट, और शायद उनकी पोर्टफोलियो है नहीं है, व्हाटएवर द थिंग इज, डू यू रिकमेंड पीपल टू लाइक परचेज इन दैट मैनर, लाइक कोर्स इस हुँ। लाइक इस की जाए नहीं की जाए? देखें, मेरा अगेन ओपिनियंस थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं, बट आई एम लाइक नॉट आई अफ्रेड। आई वुड लव टू सी लाइक कंट्रोवर्सीज, आई ठीक एंजॉय है, दैट। ओके। तो देखें, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज़ बेच रहे हैं। अच्छा बेच रहे हैं, बुरा बेच रहे हैं, उसमें क्या है मुझे नहीं पता। मैंने कभी नहीं खरीदा, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, सीधी-सी बात है। सही तो बात मुझे नहीं पता कि कोर्स के अंदर क्या वैल्यू है। जो फीडबैक मुझे मिलता है ज़्यादातर वो यही मिलता है कि इसमें वो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें लाइक कह लें कि थ्योरेटिकल होती हैं, आपको मिल जाएँगी बहुत सारी जगहों पे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ्रेमवर्क्स, ठीक है? पेन पॉइंट्स क्या होते हैं?
फॉर्मेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स क्या होते हैं, अ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, यार ये आपको इंटरनेट पे कोई भी ब्लॉग बता देगा, कोई भी यूट्यूब पे आपको वीडियो बता देगी। मैं आपको सीधी-सी एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके कोर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कोर्स के बाहर अवेलेबल है फॉर फ्री, ठीक है? ये याद रखिए, तो वो कोर्स स्कैम है। सीधी-सी बात है। या ऑफ कोर्स 70 टू 100%। 80% चीज़ें या 70 टू 80% चीज़ें जो आपको दी जा रही होती है ना, वो चीज़ें इंटरनेट पे एग्ज़िस्ट करती हैं। हाँ, वो इतनी मेनस्ट्रीम में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होंगी, बट हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि आप किस बात के कॉपीराइटर हैं, अगर आप मालूम ही नहीं कर पा रहे, एक चीज़ जो फ्री अवेलेबल है और उसको आप 70 या 1.5 लाख रुपए दे के सीख रहे हैं, फ्रॉम अ पर्सन जो कि नॉलेज को रिले कर रहा है, कोई नॉलेज या वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, एक जगह से उठा के आपको दे रहा है। तो पहली बात ये है कि भाई फ्री चीज़ों के लिए, जो फ्री अवेलेबल चीज़ों के लिए पैसे खर्च करना बेकार है। अच्छा, एग्जैक्टली। अब दूसरे स्टेप पे हम आते हैं कि यार कुछ कॉपीराइटर्स ऐसे भी तो होंगे जो ऐसा कुछ सिखा रहे होंगे जो उनका अपना बनाया हुआ होगा। अब ये कीवर्ड है यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, अपना बनाया हुआ, ओरिजिनल प्रोडक्ट। आपका कोई अपना ओरिजिनल फ्रेमवर्क है, एक आपकी अपनी कोई बनाई हुई चीज़ है, क्या आपका कोई अपना स्टाइल या मेथड है जो कहीं से कॉपी नहीं हुआ हो, आपका अपना ओरिजिनल हो और उसके पीछे रिजल्ट्स खड़े हों? अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो मैं आपका कोर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ब शर्त है कि आपका अपना बनाया हुआ हो, कुछ नया हो, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं हो, आपकी अपनी प्रैक्टिस हो, वो आप मुझे एग्जैक्टली। बताएँ, मैं सीख लूँगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात तीसरी बात कि 1.5 लाख रुपए, 70,000 रुपए, भाई मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, कॉपीराइटिंग कितना बड़ा है, कॉपीराइटिंग कितना बड़ा समंदर है, ठीक है? अनलिमिटेड। मार्केटिंग और मार्केटिंग के अंदर आप मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त बिल्कुल अपना कह लें कि जो साइकोलॉजी है, कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर जिसे आप कहते हैं, बाइंग बिहेवियर प्रोसेस, ये आपकी यूनिवर्सिटी में जो बीबीए वाले उन्होंने कोर्सेज पढ़े होंगे, साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी इन स्पेसिफिक, ठीक है? ये इसको आप प्लस करें या इसको आप ऐड करें विद लिटरेचर, प्रॉपर लेजिट हार्डकोर लिटरेचर। आपका कौन सा कॉपीराइटिंग कोर्स है जो पर्सोनिफिकेशन के बारे में बता रहा है या सिंबलिज्म के बारे में बता रहा है या एलेगरीज के बारे में बता रहा है या मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं आपका ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जो प्रॉपर लिटरेचर की चीज़ होती है, मोटिव क्या होता है, जो मतलब हार्डकोर राइटिंग है, राइटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, आपको वही नहीं पता, आपको अगर वही नहीं बताए जा रहे, साथ में आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही। साइकोलॉजी क्या है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, फनल्स में चीज़ें काम कैसे करती हैं, बी2बी का क्या फ़र्क है, बी2सी का क्या फ़र्क है, डिफरेंट निशेज़ के अंदर डिफरेंट, अब मिसाल के तौर पे आप यूएस बेचने की बात करते हैं कि आप जाओ यूएस के अंदर बेचो। यूएस के अंदर आपको पता है कितनी बड़ी डेमोग्राफिक एग्ज़िस्ट करती है। आपके पास अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, लैटिनोज़ हैं, हर स्टेट का कल्चर अलग है, हर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। कहीं पे आप कोई वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे कोई वर्ड्स बैन है। और वहाँ के जो इनकम साइकिल्स हैं, जो वहाँ के प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के, कहीं पे मैथ अगर प्रॉब्लम है, तो कहीं पे कोकेन प्रॉब्लम है। मैं आपको बहुत एक जनरल या जो होलिस्टिक सा भी कोर्स है या सॉरी आपकी वॉइस जो चली भी गई। मेंटर है आपका, जो भी मीटिंग में आप हो, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि नहीं बता रहा है? वो उसने किसी क्लाइंट से बात की है, तो उसने वो आपको दिखाया, उसने प्रोजेक्ट क्लोज़ किया, उसने आपको दिखाया, उसका सैंपल, उसका वर्क, उसकी नेगोशिएशन, ये ये सब अगर एब्सेंट है बिल्कुल, और बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। थ्योरीज़ है, अगर ये सारी चीज़ें अगर फिर आपको कोई फायदा नहीं नहीं, बता रहा ना कि एक कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स कैसे काम तो कर रही फिर है, फायदा नहीं। साइकोलॉजी कैसे काम दैट कर इज़ रही है, थिंग और बिल्कुल। ये और आपको कोई 1.5 लाख में हुँ, नहीं बताएगा बाय द वे। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बता रहा हूँ, ये 1.5 लाख वाली चीज़ें ही नहीं है। ये सीखने के लिए लोग यार 10-10 साल लगा देते हैं, ये 2 डिग्रीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये कोई आपको 1.5 लाख रुपए में सिखा देगा? बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर अल्टरनेटिव क्या है? सॉल्यूशन भी देना चाहिए ना, प्रॉब्लम तो हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना, जिनको लोग मानते हैं, जो नामी-गिरामी है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर बड़े-बड़े रिजल्ट्स लाके देख रहे हैं, जिनका सोशल प्रूफ हर जगह एक्जिस्ट करता है। इंस्टेड आप उनसे कोर्स खरीदें ना, आप जाके उनके कदमों में बैठ जाएँ, बोलें मैं आपका इंटर्न हूँ, आप मुझसे काम कराएँ, जितना लिखाना है लिखाएँ, मैं आपके पास इतने रुपए में काम करने के लिए तैयार हूँ या मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। किसी को भी फ्री लेबर बुरी नहीं लगती। इतने सारे लोग, लेकिन जो अच्छा बंदा है ना, उसके पास जाके बैठ जाएँ। हुँ, आप उसके पास इंडस्ट्री में जाके बैठें, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको सिखाया भी जाएगा। इंस्टेड क्या आप कोर्स खरीदें ऑनलाइन, आपकी कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, सामने वाले को आपने सेलिब्रिटी बना दिया। वो आपको दे रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो चीज़ें हासिल करने के बहुत सारे फ्री तरीके भी हैं। मैंने फॉर्मली आज तक कोई कोर्स नहीं करा। हाँ, मैंने इंडस्ट्री में बैठ के लोगों से समझा है, सीखा है, लाइव देखा है। मेरा एक मुझे याद है, मेरा इतना ज़बरदस्त ड्राफ्ट था बुक का, मैंने एक अपना क्या कहते हैं फैंटेसी पीस था, उसके अंदर एक लड़की की कहानी थी जो कि हेल में वेकअप कर रही है। मैंने उसको लिखा था, बहुत ज़बरदस्त लिखा था, मुझे लग रहा था मैंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। क्लाइंट ने बोला कि यार ये नेटिव नहीं लग रहा। और मेरी समझ नहीं आ रही थी कि इसमें मुझे नेटिव क्या डालना है। मैं अमर भाई के साथ बैठा, मैं बोला यार अमर भाई ये कैसा फीडबैक है? मैं बहुत वेग है मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, कोई मैंने नॉन नेटिवनेस यहाँ पे नहीं शो करी है, कहीं वर्डीनेस नहीं है, कहीं एक्सप्रेशंस कोलोकियलिज्म में मसला नहीं है, मुझे बताएं क्या मसला है। उस बंदे ने एक एक लाइन का ब्रेक डाउन किया था मेरे साथ बैठ के। उस बंदे ने 2 घंटे मुझे दिए थे, हर लाइन को उसने मुझे फॉल्ट बताया, तो उसने बताया था इसकी जगह ये लगाओ, इसकी जगह ये लगाओ, क्योंकि एक अच्छी लाइन क्या होती है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, राइट? अगर एक वर्ड भी ऊपर नीचे एग्ज़ैक्टली। हो गया तो फिर वो परफेक्ट नहीं रहती, वो ऐसी इनकम्प्लीट इमारत की तरह होती है जहाँ पे सिर्फ एक ईंट लग सकती है और उस एक ईंट के ना लगे होने से आपको लग रहा होता है ये मिसिंग है, लेकिन वो एक ही ईंट लगेगी, उसी साइज़ की, उसी टेक्सचर की, उसी कलर की, उसी मटेरियल की होगी, तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एक परफेक्ट सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही होता है। उन्होंने मुझे सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक डाउन किया और बाय द वे आई वाज़ बीइंग पेड अ वेरी गुड सैलरी। मैं वहाँ पे सीख भी रहा था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी सैलरी थी, बट स्टार्टिंग के लिए इट वाज़ अ गुड सैलरी और उसमें मुझे एक बंदा लेजिट सिखा रहा है बैठ के। तो मेंटरशिप
को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कोर्सेज, जिससे आप पर्सनल वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, उससे गालियां खा सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं। आप उसके साथ बैठे जो रियल में एग्जिस्ट करता है, वो आपको ज्यादा बेहतर सिखाएगा, जिसके पास रिजल्ट्स हैं दिखाने के लिए। इंटरनेट पे तो मैं यकीन माने आपको अभी अभी बैठे बैठे जो है ना $8-10 हज़ार की सेल दिखा सकता हूँ विद डॉक्यूमेंट्स। क्या मुश्किल है यार, इतने सारे टूल आ गए, कुछ भी बना के कुछ भी किसी को बना के दिखाया जा सकता है। तो एग्जैक्टली। इस तरीके से नहीं, रियल लाइफ के अंदर जो हीरोज हैं, जो बैठे हुए हैं, जेम्स हैं, उनके साथ बैठे और हैं भाई। कमी नहीं है, पाकिस्तान में इतना जबरदस्त टैलेंट बैठा है, आपको पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं, बहुत और जबरदस्त लोग बैठे हैं। लाइक आपको नहीं लगता कि जो हीरोज हैं, जो लाइक जो इंडस्ट्री को लाइक एक्सीलेंट मतलब काम जो कर रहे हैं, हम्म, वो नॉइज नहीं बनाते, मतलब जो ज्यादा बिल्कुल अच्छे वो शोर नहीं मचाते इस तरह। बिल्कुल भाई, उनके पास टाइम कहाँ है कोर्स बेचने का? नहीं। वो कोर्स बनाएंगे या फिर वो काम करेंगे? मुझे एक बात बताएं कि अगर आप महीने के 10,000 15,000 $20,000 बनाते हैं काम से, आपके पास हम्म। टाइम कैसे कोर्स बनाने का? सही बात है बिल्कुल। सीधी सी बात है, मुझे तो नहीं समझ आती। तो खैर, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। मैं नहीं कह रहा कि सब स्कैम है, इसमें अच्छे भी होंगे। मैं नहीं कह हम्म। रहा सब कुछ गलत सिखाते हैं, हो सकता है 20-30% चीजें बहुत वैल्यूएबल होंगी। लेकिन आप अपना दिमाग खोलें, आप कॉपी राइटर हैं, आप गंजे को कंघी बेचते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और भाई तो आपको पैसे अपना लगाने दिमाग से खोलना पहले चाहिए। इंसान सोचे कि भाई मैं पैसा बिल्कुल लगा रहा हूँ, मुझे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बिल्कुल आपको गारंटी ही नहीं मिलती है तो फिर फायदा नहीं है ना ऐसे पैसे लगाने का। सही बात है। ये बात है। और भैया खुद ही से इंसान अपना माइंडसेट बनाता है, खुद ही से एक अंदर से गट फीलिंग आती है, खुद ही से एक ट्रस्ट फैक्टर आता है, ये सब देख के करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना हैंड रेज़ कर रहे हैं, आई विल श्योर श्योर। लाइक टेक देम ऑन स्टेज। ये थोड़ी ना हमने सॉफ्टवेयर हाउसेस की और थोड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात कर ली है। हम्म, अब थोड़ा हम ऐसा मतलब मतलब फ्रीलांस की साइड पर आ जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे ऐसा है कि इफ आई एम अ राइटर और इफ आई एम अ कॉपीराइटर, ठीक है? तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मैं सोशल मीडिया के लिए लिखूँ, मैं मार्केटिंग के लिए लिखूँ, मैं आर्टिकल्स लिखूँ, मैं वेबसाइट के लिए लिखूँ, मैं लैंडिंग पेजेस लिखूँ, मैं क्या लिखूँ? और इसकी एक अलग सैलरीज़ हैं। हर कॉपीराइटर की एक अलग डिमांड है। व्हाट आई एम नोटिसिंग थ्रू आउट द इंटरनेट और बेसिकली लिंक्डइन, एक तो अचानक से लफ्ज़ आ गया घोस्ट राइटर। एवरीबॉडी इज़ घोस्ट राइटर और एवरीबॉडी इज़ लिंक्डइन घोस्ट राइटर। अब मुझे मसला नहीं है, ऑफ कोर्स यार यू आर डूइंग दैट, बट आप लिंक्डइन घोस्ट राइटर बने कैसे? आपको कैसे पता चला कि आप लिंक्डइन घोस्ट राइटर हो? और घोस्ट बिल्कुल राइटर इज़ नॉट समबडी हू इज़ लिमिटेड टू लिंक्डइन। आप घोस्ट राइटर फोर्ब्स आर्टिकल जो फोर्ब्स बिल्कुल, पेपर जो बुक्स ब्लॉग्स के के लिए लिए भी भी कर होते हैं, सकते हैं, हर चीज के लिए आप होता उसकी घोस्ट राइटिंग करते हो। आई हैव पर्सनली रिटन 2 फोर्ब्स की ब्लॉग पोस्ट, आई एम अ घोस्ट राइटर। है। अब मुझे जब मैंने वन-ऑन सेशंस लिए, सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं कि लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग करनी है क्योंकि सब कर रहे हैं, बहुत पैसा है। नहीं करनी। यू हैव टू फाइंड योर ओन स्किल। जस्ट बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ डूइंग घोस्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन, इट डजंट मीन कि भैया आपने भी लिंक्डइन बिल्कुल पे ऐसी करनी है। है, पैसा बहुत है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो हम पहचाने कैसे हैं कि मैं सोशल मीडिया पे काम करूँगा, मैं वेबसाइट के लिए लिखूँ, मैं लैंडिंग पेज के लिए लिखूँ, पैसा कैसे मतलब उसमें बनाना है, उसकी अलग-अलग रेट्स हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? और एक और बात ये कि एक जैसे मैं कॉपी राइटर हूँ, अब पीपल नो मी, मेरी एक हम्म, सैलरी है, अब लोगों को पता है कि एक फिक्स प्राइस इसकी ये है या शी विल बी चार्जिंग दैट। तो हम क्लाइंट मेरे पास आता है, हम नेगोशिएट करते हैं एंड ऑल दैट। मेरे पास पूरी फील्ड होती है जिसमें मैं खेल रही होती हूँ कि अगर आप मुझे वेबसाइट लिखने के लिए देंगे तो आई विल बी चार्जिंग दैट, लेकिन अगर आपको मुझसे प्रोफाइल भी लिखवानी है तो मैं एक पैकेज बना लेती हूँ। लाइक आई हैव फ्री हैंड, हम्म, पीपल बिकॉज़ वो खुद मेरे पास आया है, तो ही इज़ विलिंग टू हायर मी। बट हम्म, इफ समबडी हू इज़ बिगिनर, तो वो कैसे काम करे? उसको भी सब कुछ करना है, बट उसके पास कोई बैकअप नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पता ही नहीं है अभी कि मुझे करना क्या है। तो ठीक है। व्हाट इज़ द वे कि वो इस चीज़ को मतलब सिलेक्ट कर ले कि मैं इसी पे स्पेसिफिक बनूँगा, मैं इसी नीश पे काम करूँगा और मुझे इसके पैसे मतलब मैं कैसे कंपेयर करूँ अपने रेट्स मार्केट से और मुझे उतने ही मिले रेट्स जो मुझे मार्केट में लोगों को मिल रहा है एक्सपर्ट लेवल पे जाके। तो हाउ डू यू थिंक दैट इज़ पॉसिबल? देखें, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बिफोर वी जंप इनटू ऑडियंस क्वेश्चंस, इसको हम देख लेते हैं। देखें, आपने ये समझना ज़रूरी है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। मेंटालिटी या अप्रोच किसी भी चीज़ की होती है ना, बड़ी मैटर करती है। अगर आपने जाकिर नाइक का नाम सुना होगा, जो कि फेमस इस्लामिक प्रीचर हैं, ठीक है? बहुत उनका मतलब कह लें एग्ज़ैक्टली। कि अच्छी जी। स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं, रेफरेंसेस देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो एक खास पर्सनैलिटी रखते हैं और उन्हीं की तरह का जो काम जो उनसे पहले करते थे, शेख अहमद दीदार, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते थे। तो पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी का फ़र्क बहुत होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे, हुँ। अगर आपने ये देखना है कि आपका दिमाग किस तरह काम करता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, पेन पॉइंट को टच करो। हर कॉपीराइटर आपको पेन पॉइंट को टच करता हुआ नजर आएगा। हाँ, यार, आधे से ज्यादा कॉपीराइटर्स को एग्ज़ैक्टली। पेन पॉइंट हाँ, का मतलब ही नहीं पता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम को मतलब पेन ही नहीं पॉइंट समझ पता। रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रॉब्लम को पेन पॉइंट समझ रहे होते हैं। बिल्कुल। आपने सीधे सीधे ये बोला कि भाई, मिसाल के तौर पे किसी की जॉब चली गई, ये उसका प्रॉब्लम है, पेन नहीं है उसका ये। हुँ, हुँ। पेन उसका ये है कि वो अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। ठीक है? इसी तरीके से कोई अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ैक्टली। किसी का कंप्यूटर बहुत स्लो काम कर रहा है या बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है? ये उसका प्रॉब्लम है, इसका पेन नहीं है। उसका पेन ये है कि वो रात में गेम नहीं खेल सकता अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? या लैग करता है या एग्ज़ैक्टली। उसको मार रहे हैं लोग तो उसका स्कोर बहुत कम आ रहा है और उसकी सेल्फ एस्टीम पे बात आ रही है, ये उसका पेन है। हम प्रॉब्लम पकड़-पकड़ के उसको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमें पेन का पता ही नहीं होता। और वही बात है ना, दुःख की रग पे सिर्फ कॉपीराइटर हाथ नहीं रखता, दुःख की रग रग जो होती है ना, उसको दबा देता है। लाइक उसको लेजिट रिलीव कराता है थ्रू द पेन। बेटा, ये तुम इस चीज़ से गुज़र रहे हो, तुम्हारी जेब से मुझे पैसे निकलवाने हैं, तुम्हें मुझे मुफ्त का ज्ञान अब्दुल सत्तार ईदी बन के नहीं बेचना। तो कंटेंट राइटर और कॉपी राइटिंग के मेंटालिटी का बहुत बड़ा फर्क है। हमें ये समझना, हमारी मेंटालिटी किस तरह की है, हम किस तरीके की अग्रेसिव अप्रोच रखते हैं चीज़ों को लेके। हम पैसे निकालने वाली फनल क्रिएट करने वाले हमारी अप्रोच है, या फिर हमारी अप्रोच थोड़ी सी कंपैशनेट है, थोड़ी सी एम्पैथेटिक है, हम हेल्प करना चाहते हैं लोगों की। देखें, ये बुनियादी फर्क है। सबसे पहले ये डिसाइड करना किसी भी राइटर को कि मैं कॉपी राइटर बनूंगा या कंटेंट राइटर बनूंगा, सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना बिफोर ही जंप्स इनटू अदर थिंग्स।
सबसे पहला फ़र्क ये करना है। कंटेंट राइटर अब्दुल सत्तार ईदी की तरह है, वो लोगों की मदद करता है, वो लोगों को फ्री के अंदर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। पेन पॉइंट से उसका कोई लेना-देना ही नहीं है, वो प्रॉब्लम का हुँ, सॉल्यूशन देगा, वो उनकी हेल्प करने बैठा है, ठीक है? हाँ, उसको पैसे उस चीज़ के मिलते हैं, बट वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है। वो एक एम्पैथेटिक पर्सन या कोई कंपैशनेट पर्सन जो इस तरह की राइटिंग करता हो, इन्फॉर्मेशन ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन, उसके लिए कंटेंट राइटिंग है। कॉपी राइटिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। ये जो गंजे बंदा है, उसको कंघी बेचता है। लेजिट ये आपसे पैसे लेगा, ठीक है? और आपको इस इल्यूजन में डालेगा कि इसने आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करी है। ये एक आर्ट है भाई, किसी की जेब से अपनी मर्ज़ी से पैसे निकलवाना कोई आसान काम नहीं है। कॉपीराइटर्स ये काम बहुत आराम से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुःख की रग समझते हैं कहाँ है, पेन पॉइंट समझते हैं कहाँ है, वो आपको उस तकलीफ से आपके दिमाग में वापस से गुज़ारते हैं और उसके बाद आपसे पैसे निकलवाते हैं और आप उनको पैसे भी दे रहे होते हो और थैंक यू भी बोल रहे होते हो। ठीक है? ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक एग्रेसिव, एक डिफरेंट किस्म की मेंटालिटी जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग बिल्कुल अलग हो, जिसका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग हो, वो एक डोमिनेशन से बात करे, एक अथॉरिटी से बात करे, ये दोनों में फ़र्क है। तो सबसे पहले आप ये तय करें आप बनना क्या चाहते हैं और दोनों में से कोई अच्छा या बुरा नहीं है, ठीक है? हर एक का अपना-अपना वो है। तो कोई किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है। कॉपी राइटिंग में आप जब जाते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कंटेंट राइटर को एक्का या दुक्का लाइन जो है ना, वो अपनी ज़बरदस्त रखनी पड़ती है ताकि वो एंगेज रखे। कॉपी राइटर को हर सेंटेंस हुक के बराबर रखना है और उसका हर सेंटेंस इतना दमदार नहीं है, जितना दमदार एक कंटेंट राइटर का एक हुक होता है, तो फिर वो कॉपी राइटर नहीं है। तो फिर वहाँ पे आप अपने आप को डिवाइड करें। अगर आप शॉर्ट फॉर्म अच्छा लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए लिखते हैं? आप सोशल मीडिया कॉपी राइटर कितने आराम से कह देते हैं ना अपने आप को। भाई सोशल मीडिया नेटवर्क, हर नेटवर्क एक अलग गेम है। लिंक्डइन पे जो पोस्ट लिखोगे वो इंस्टाग्राम पे नहीं चल सकती, कुछ भी कर लो नहीं चलेगी, ठीक है? बहुत डिफरेंट है दोनों के मैकेनिक्स, आवाम बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह का कमेंट मैं लिंक्डइन पे छोड़ता हूँ, उतना वैसा कमेंट मैं कभी इंस्टाग्राम पे नहीं छोड़ूँगा किसी पोस्ट के नीचे। हाँ, एग्ज़ैक्टली मीडियम्स अलग अलग हैं, ही पोस्ट पैटर्न फॉर्मेट्स है। अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपने समझना ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया कॉपीराइटर भी आप ऐसे नहीं बन जाते। आप ये मुझे बताएँ आप किस सोशल मीडिया नेटवर्क के कॉपीराइटर हैं? आप कैसे आप बताएँगे? या आप कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे एक एग्ज़ाम्पल से हम बाकी चीज़ों को भी देख लेंगे कि आप ये फैसला करेंगे कि मेरी बेस्ट परफॉर्मिंग चीज़ नंबर 1 क्या है? नंबर 2 मेरे जो बेस्ट परफॉर्मिंग चीज़ है, उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे मज़ा आया? ठीक है? आपकी पैशन और परफॉर्मेंस जहाँ एक पेज पर नहीं आएँगी, वो आपका नीश नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, मेरा लिंक्डइन पे 4 अब लिंक्डइन घोस्ट राइटर बने बैठे हो, तुम्हारी अपनी पोस्ट पे 12 लाइक आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा हुक मज़ेदार नहीं है, तुम्हारा फॉर्मेट ठीक नहीं है, तुम्हारे पास सीटीए नहीं लगा हुआ, तुमने पेन पॉइंट टच ही नहीं करा। तुम लिंक्डइन घोस्ट राइटर कैसे हो? एक आपको मैं एक बड़ी मज़े की फ़नी बात बताता हूँ। मेरा ये मैंने पोस्ट लगाया था ना जो आप जिस पोस्ट की आपने बात करी थी, जी, जिसके जी, अंदर जी। ये सारे जी, के जी। सारे अमाउंट्स थे, जी, इतने जी। अमाउंट इस राइटर के, इतने अमाउंट इस राइटर के। हुँ, आपको पता है उस पे एक बंदे का कमेंट आया था, इसने बोला था एंड आई एम कोटिंग हिम, "यार ये किस किस्म का अजीब पोस्ट है? आपने बताया तो जॉब का लेकिन नीचे ईमेल तो लगा ही नहीं।" तो लेजिट उसको एक जॉब एप्लीकेशन पोस्ट समझा था कि ये वैकेंसी यहाँ पे खुली हुई है और ये बंदा इतने-इतने पैसे दे रहा है इतने साल के राइटर के। उसकी प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ था एक्सपर्ट ईमेल कॉपीराइटर हू हैज़ हेल्प्ड 1200 बिज़नेसेस जनरेट ये स्काईरॉकेट रेवेन्यू इस तरह कुछ लिखा हुआ था। और लेकिन मैं सर ये जो पकड़ के बैठा हूँ। हेडलाइन्स होती हैं, ये सबसे हाँ। यूज़लेस और सबसे क्या कहते हैं अनसीरियस होती हैं। इस पे तो जाना ही नहीं चाहिए मतलब। मैं सर पकड़ के बैठा हूँ मेरे भाई जब तुम एक जॉब तुम पोस्ट को सही से नहीं पढ़ सकते, तुम ईमेल कॉपीराइटर कैसे हो? तुम मुझसे ईमेल माँग रहे हो कि तुम्हें मतलब अप्लाई कहाँ करना है? खैर मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया बिकॉज़ ये लिंक्डइन है अगेन ये अगर ट्विटर होता तो बिल्कुल अलग जवाब होता उसको मिलता। एग्ज़ैक्टली। लेकिन यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई आपका पैशन और परफॉर्मेंस कहाँ इकट्ठा हो रहा है? मेरी लिंक्डइन की पोस्ट अच्छी चलती है माशाल्लाह से ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी ऐसे ही चल जाऊँगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ मोस्ट होते हैं, हुँ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ठीक बहुत है? कम होता है रेयर। आपने ये फिगर आउट करना है कि आप लॉन्ग फॉर्म में कंफर्टेबल हैं, शॉर्ट फॉर्म में कंफर्टेबल हैं। शॉर्ट फॉर्म में कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप किस तरह के शॉर्ट फॉर्म में कंफर्टेबल हैं? क्या आप ईमेल्स अच्छे लिखते हैं? क्या आप लिंक्डइन पे अच्छी पोस्ट बना के काम कर रहे हैं? क्या आप ट्विटर आपके लिए ज़्यादा थोड़ा-सा डार्क, थोड़ा-सा एजी इस साइड पे आपकी राइटिंग जा रही है? या आप पिक्चर ड्रिवन बहुत ज़्यादा हैं, पिक्चर्स के साथ स्टोरीज़ को रिलेट कर सकते हैं, पिंटरेस्ट आपका है, इंस्टाग्राम आपका है, ठीक है? या फिर आप लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं? अच्छा लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं, फिर आप कॉपीराइटिंग डोमेन से तो थोड़ा-सा बाहर आ जाएँ, क्योंकि कॉपीराइटिंग लॉन्ग फॉर्म में बहुत मुश्किल है। इतना टाइम नहीं होता कॉपीराइटर के पास कि वो अपने जो है ना इतना स्पेस उतना टाइम उसको नहीं मिलता। अच्छा भई आप ब्लॉग हुँ, राइटर हैं, ब्लॉग्स ब्लॉग्स लिखे हैं क्या आपने? क्या आपके ब्लॉग्स किसी ने पढ़े हैं? क्या आपने खुद भी अपने ब्लॉग्स वापस से पढ़े हैं? मैं सिंपल सी बात बताता हूँ भई तैयबा आप भी होंगी, मैं भी हूँ। भई मैं अपना काम खोल-खोल के पढ़ता हूँ। मैं आज भी अपनी पुरानी मैं भी पोस्टों को पढ़ती जाके हूँ। पढ़ता हूँ। अब शौक से पढ़ता हूँ। एग्ज़ैक्टली। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि हाँ, मुझे अच्छी लग रही है इसलिए पढ़ रहा हूँ। मुझे ये अच्छी नहीं लगेगी तो मैं भी नहीं पढ़ूँगा। क्या आप अपनी पोस्टों को पढ़ रहे हैं? सिंपल अपने इंसान को अपने आप से सवाल पूछने चाहिए बहुत सारे और उसको सब कुछ करना हुँ, चाहिए। एक मतलब कह लें मिक्स प्लेट बनाए वो, लेकिन उसमें फिगर आउट करे 2 चीज़ें कि ऐसी कौन-सी स्किल है, ऐसा कौन-सा नीश है जिसमें मेरा परफॉर्मेंस और मेरा पैशन इकट्ठा आ रहा है। जहाँ ये एक साथ क्लिक करके आप उसको लॉक कर दें, अब आपने बोलना है कि मैंने इस पे 1 साल काम करना है और 1 साल बाद मुझे फैसला करना है कि हाँ, मैं इसको फ्यूचर में परस्यू करूँगा हुँ, या नहीं। इस वक़्त पैसों का आप नहीं सोचेंगे क्योंकि आपके पीछे कुछ भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है? आपको जो कुछ पैसे भी मिल नहीं रहे है होंगे यहाँ। काम करें। यू नीड ठीक है? एक्सपीरियंस, कोई यू नीड मतलब यार पोर्टफोलियो। ये हाँ, ये एम्प्लॉयी राइट्स वाली कहानी नहीं है। भाई मुँह माँगे पैसे लेने के लिए मुँह ऐसा बनाना पड़ता है। ठीक है? तो उसके लिए लगता है टाइम और वो आपने टाइम लगाना है। आप उस वक़्त जो भी मिलना है आप लें। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? काम करें, एग्ज़ैक्टली। खुद ब खुद मिलेंगे। 1 साल बाद आपको खुद पता होगा कि आप कितना डिज़र्व करते हैं। सही, 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 सही। ऑडियंस बहुत ज़्यादा हैंड रेज़ कर रही है। जस्ट लास्ट श्योर, श्योर। क्वेश्चन फिर हम उसके बाद ऑडियंस को लेंगे कि
शुड बी लाइक फाइंड वर्क थ्रू फेसबुक। जो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे दे आर प्लेंटी ऑफ वर्क, नॉट लाइक लिमिटेड टू कॉपी राइटिंग, पूरा हम्म, पूरा वीडियोस एडिटिंग करने के लिए लोग आएंगे तो एंड स्टफ। शुड बी हम्म। कंसिडर फेसबुक टू गेट अवर फर्स्ट क्लाइंट। देखें, फेसबुक का एल्गोरिथम जो है ना वो बड़ा मजेदार भी, बड़ा अजीब भी है, वहाँ सब कुछ चलता है। ठीक है, यही प्रॉब्लम फिर आता है वहाँ से क्लाइंट लेने में। वहाँ पे काम बहुत है, ऐसी बात नहीं है काम नहीं है, लेकिन ये लोग आपका खून पी जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बाय द वे, हो सकता है किसी का बहुत डिफरेंट हो। मेरे हम्म, साथ जो हुआ है तो मैं वो बता रहा हूँ चूज करते हैं। कि ये वो क्लाइंट्स नहीं होते हम्म, जो क्लाइंट्स आप चाहते हैं कि आपको मिले। ठीक हम्म, है, तो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ मनी आप कर सकते हैं, बट आपका हम्म, लिटरली खून पी जाएंगे। क्योंकि यार ये फेसबुक वही बात है ना यार, एक फर्क है ना, जेनेरिक सा आपको फर्क खुद भी समझ में आता है। लिंक्डइन या फेसबुक में या ट्विटर में एक बहुत बुनियादी फर्क है इन तीनों नेटवर्क्स में। यहाँ की वही बात है ना कि एक बंदा जो ट्विटर पे जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, वो लिंक्डइन पे आके सूट भी पहन लेता है, उसकी ज़बान भी ठीक हो जाती है और वो फ़ौरन से कॉर्पोरेट बन जाता है। फ़र्क होता है हर प्लेटफ़ॉर्म के कल्चर का, कल्चर है बेसिकली ना। तो फेसबुक पे जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ना, वो आपको लो पैसे देंगे, सबसे पहली बात ये, तभी वो फेसबुक पे ढूँढ रहे हैं। क्योंकि फेसबुक हम्म, पे हर चीज़ के बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं ना, अवाम बहुत है, स्पेशलाइज़्ड लोग नहीं मिलते, हर कोई आ जाता है। तो वो फेसबुक पे इसलिए ढूँढ रहा है भाई, वरना वो उसको भी पता है कि और प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़िस्ट करते हैं। कम पैसे एग्जैक्टली। देंगे और आपका खून पिएँगे, डेडलाइन्स ये वो, वही जो आपको एक खास बुरे क्लाइंट की जो एक पूरी पर्सोना होती है, वो आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको अच्छा भी मिल जाए। मैं तो कहता हूँ ट्राई करके देख लें। मैंने कभी नहीं किया, बट मतलब मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा ट्राई नहीं किया। मुझे एक दफ़ा ही बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला। लेकिन हो सकता है आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले। आप ट्राई करें, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप मुझे बताएँ, मैं इस चीज़ को एंडोर्स कर लूँगा कि हाँ, यहाँ से भी ढूँढ। मिल सकते हैं, एग्जैक्टली राइट। अच्छा, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि फेसबुक पे देयर आर पीपल जो आउटसोर्स कर रहे होते हैं, उनका अपना काम नहीं होता। दूसरा ये कि दे आर हैप्पी विद लो क्वालिटी वर्क, बस उनको काम चाहिए किसी भी तरीके से। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो उनका कोई इस तरह का गोल नहीं होता कि एक्सपर्ट बिल्कुल यूट्यूब राइटर मिले मुझे, बिल्कुल एक्सपर्ट मिले, एक्सपर्ट क्वालिटी मिले, क्योंकि उनके बजट इतना लो है तो उनको पता है कि यू आई एम गोइंग टू पे पीनट्स, आई एम गेटिंग मंकीज, सीधी सीधी सी बात हुँ, है। हुँ। तो इसी तरह सेम जो है ना, लाइक अगर आप खुद भी किसी को मतलब हायर करना चाह रहे हो, तब भी आपको फेसबुक कंसिडर नहीं करना चाहिए। वहाँ पे लोग होंगे विद थर्ड क्लास क्वालिटी वर्क। तो आई डोंट थिंक सो, बट मैंने देखा है लोग, देयर आर पर्टिकुलर लाइक ग्रुप्स जो फ्रीलांस के ऊपर ही चलते हैं, एंड यू फाइंड लाइक काम वहाँ से मिल जाता है। बट अगेन ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल लो क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, तो उससे तो अवॉइड ही रहना चाहिए। भाई जहाँ तो सब दैट बिक रहा है ना, वहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अब हम ज़रा ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो इफ एनीबॉडी इज़ हैविंग एनी क्वेश्चन और एनी स्टेटमेंट, एनीथिंग, दे कैन रेज़ देयर हैंड। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज़ किया था और मैं मुझे ना थोड़ी यहाँ पे ग्लिच आया हुआ है। तो हैंड रेज़ नज़र नहीं आ रहा है, बट इफ समबडी हैज़ एनी क्वेश्चन दे कैन रेज़ देयर हैंड। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है, अच्छा मेरे डीएम पे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो ये जो क्रिएटर्स होते हैं लिंक्डइन के, दे हैव देयर वायरल पोस्ट एंड देन दे लाइक परस्यू कि आप इसी टेम्पलेट को यूज़ करो। मतलब मेरी व पोस्ट इस फॉर्मेट से वायरल हुई है, तो आप भी इसको इसी तरह ही लिखोगे तो यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू बी लाइक आपको कन्वर्जन मिल सकती है, आप वायरल हो सकते हो। तो व्हाट डू यू थिंक, शुड आई कॉपी एंड पेस्ट एंड लाइक मेक सम अमाउंट ऑफ अमेंडमेंट्स एंड देन यूज़ दैट टेम्पलेट और नॉट? देखें, एक पोस्ट था जिसने किया, उसका एक खास टेम्पलेट था, वो वायरल हो गया। ठीक है? तो अब आप जब हुँ, पोस्ट हुँ। करेंगे उसी टेम्पलेट पे, तो आपका क्यों वायरल होगा? सबको तो पता चल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक हाँ। चीज़ जब बहुत ज़्यादा रिपीट होती है ना, तो उसका मज़ा खत्म हो जाता है। अब एक हुँ, हुँ। टेम्पलेट अगर एक दफ़ा काम कर गया, 10 लोगों के लिए काम कर गया, ज़रूरी नहीं है वो 100 लोगों के लिए करे। ठीक है? वो यार पोस्ट की नहीं देखें, अगर आपकी पोस्ट अच्छी होगी ना, तो आप अपनी सेल्फी लगाते हैं, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, टेम्पलेट कोई सा भी हो, कंटेंट अच्छा होगा, कंटेंट चलेगा, ये बात याद रखें। चल जाएगा, हाँ, चल एक जाएगा। कंटेंट को बूस्ट मिलता है फॉर्मेटिंग से, स्ट्रक्चर से, किस तरीके से प्लेस हुई हुई चीज़ें, बहुत मैटर करता है, टेम्पलेट्स बहुत मैटर करते हैं। लेकिन वो इस वजह से नहीं चलती, वो चलती इसी वजह से बिकॉज़ वो एक चलने वाली चीज़ है। तो आप चलने वाली चीज़ बनाएँ, फिर बेशक आपने जो टेम्पलेट इस्तेमाल करना है आप करें, वो चलेगा। लेकिन ये मैं मेरा अपना अपना मेरा ज़ाती जो नज़रिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, वो ये है कि भाई आपने किसी का टेम्पलेट क्यों लेना है, आप अपना टेम्पलेट क्यों नहीं बना सकते? सिंपल सी एग्ज़ैक्टली, बात है, एग्ज़ैक्टली, क्रिएटिव बनें, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अभी मैंने 2-4 चीज़ें शुरू करी हैं, बाकायदा मैं मतलब पर्सनली क्रेडिट ले सकता हूँ चीज़ों का, लेकिन मैं नहीं लूँगा। जो मैंने शुरू करी हैं, लाइक उससे पहले उस तरह के स्टाइल की पोस्ट नहीं होती थी। मेरे करने के बाद ही मुझे बहुत सारी नज़र आई हैं, ठीक है? और मेरे ही नेटवर्क में नज़र आ रही हैं, दैट मीन्स कि मुझे ही देखा है। और आई आपको नो। जो है ना उसकी वो भी नहीं मिल रही होगी, क्या कहते हैं कि मतलब क्रेडिबिलिटी जो मिलती है वो भी नहीं मिल रही होगी, टैग नहीं हाँ। मिल रहे होंगे कि मैंने यहाँ से काम उठाया है। हाँ, ऐसा होता है, हाँ, सेम, सेम। लेकिन ख़ैर हो गई, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन वो नहीं चलनी है ना उस तरह, क्यों नहीं चलनी है भाई वो उस तरह? क्योंकि भाई वो मैं फर्स्ट था ना, मैंने उस चीज़ को पीक पे ले आके छोड़ दिया। अब आप उस पीक पर भी नहीं जा रहे और आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। लोग अब देख-देख अब मैं भी वैसी पोस्ट बना के डालूँगा ना तो नहीं चलेगी, मैं आपको नहीं गारंटी चलेगी, दे रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, सिंपल सी एग्ज़ैक्टली। बात है। ये तो मैं मतलब बिल्कुल एग्री कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी जैसे आप फील्ड पे जाओ, यू विल फाइंड जोक्स, यू विल फाइंड मीम्स, यू विल फाइंड वन लाइनर स्टेटमेंट्स जहाँ पे आई एम लाइक क्रिटिसाइजिंग समबडी और कुछ भी इस तरीके का सा। तो पीपल लिटरली कॉपी एंड पेस्ट ऑन देयर फीड और मुझे नज़र आ रही है, बट दे आर नॉट गोइंग टू लाइक एप्रिशिएट दैट, मुझे खुद ही आप एप्रिशिएट कर लो या कुछ भी। और फिर उनको वैसे एंगेजमेंट भी नहीं मिलती, या मेरी एक वॉइस बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। तो मुझे पता है कि इफ समबडी इज़ कॉपीइंग पूरी पूरी मेरा साउंड ले भी लिया है, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू लाइक मैच दैट थ्रेशोल्ड जो मैंने सेट कर दिया है। भाई यही तो लोग ये तो तो है। वज़ीर-आज़म बनेंगे लेकिन पाकिस्तान के अभी अगेन इलेक्शन में। हाँ। इन्हीं लोगों ने बनना है, इन्हीं का है एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान। एग्ज़ैक्टली।
अच्छा, नो कमेंट्स ऑन दैट। सही थी। खैर एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है पर्सनल डीएम पे, और मेरी 1-2-4 पोस्ट भी हैं मीडियम पे। आई राइट ऑन मीडियम और मेरे पास बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ पे स्टैट्स हैं। माय वायरल जो स्टोरी है वो 10,000 व्यूज़ जो है उसमें आ गए। माशाल्लाह। और पीपल लाइक लिटरली आस्क मी कि भाई यू आर नॉट गेटिंग पेड, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील एंड लाइक मैनी अदर कंट्रीज़ दे आर नॉट इवन मोनेटाइज्ड। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ राइटिंग थ्रू मीडियम? तो मैं इसको क्लियर कर लूँगी कि मेरा जो मैंने मीडियम पे लिखना स्टार्ट किया था जब मैं लिंक्डइन पे लॉन्ग टर्म ऑफ लाइक लॉन्ग लॉन्ग पोस्ट जो होती है वो लिखना स्टार्ट की थी मैंने तब, कि लिंक्डइन पे एक मतलब जैसे आपने मेंशन किया था एक फॉर्मेट होता है, एक डायरेक्ट बातें होती हैं। तो मेरी जो टोन है, मेरी जो राइटिंग स्किल है वो थोड़ी लेंथी है। आई वांट टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। मैं एक बात लिख रही हूँ तो मैं क्यों लिख रही हूँ, मुझे उसको डिफाइन करना है। तो मेरी पूरी ना एक लॉन्ग जो पोस्ट थी वो पूरा एक आर्टिकल बन जाती थी, एक पूरा ब्लॉग बन जाती थी। और मुझे नहीं होता था कि इतनी लंबी पोस्ट तो कोई नहीं पढ़ने वाला मेरे लिंक्डइन के पेज पर। तो आई लिटरली कॉपी दिस और फिर मैं उसको मीडियम पे पोस्ट कर दिया करती थी। तो वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे मतलब ट्रैक्शन ले ली, खुद ही से वहाँ पढ़ने लग गए। तो जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मेरे पास ऑडियंस बिल्ड हो रही है, तो मैं वहाँ पे अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर रही हूँ टू सेल माय सर्विसेज़। जो मेरी मतलब कि जो वन ऑन सेशंस हो गए, मेरी ई-बुक्स आ रही हैं, वो मैं वहाँ पे लाइक आई एम बिल्डिंग माय ऑडियंस देयर फॉर कन्वर्जन पर्पसेस। तो वो कोई क्लाइंट व्लाइंट के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आक ऑफर आपको आ जाती है एडिटिंग की, या कोई बुक बुक लिखवा रहे हैं तो आप आ जाओ, या मीडियम पे ब्लॉग्स ओनर होते हैं, तो दे वांट यू टू राइट फॉर देम, तो उस किस्म की आपको आ सकती हैं, क्या कहते हैं, ऑफर्स। बट अगेन यू आर नॉट गेटिंग पेड थ्रू मीडियम। और मैंने अपना लगाया था हिसाब किताब, तो अप्रोक्सीमेटली मैं $180 पर मंथ छोड़ रही हूँ। लाइक इवन अगर ये मोनेटाइज हुआ होता है मेरा अकाउंट, तो मुझे तकरीबन पौने 200 मंथली मिल जाते इस कन्वर्जन के साथ। बट नहीं हुआ वैसा, तो और ऐसा मुझे कोई पैसे भी नहीं मिल रहे। बट वहाँ पे सिर्फ अपनी मेरी ना एक वो बिल्ड हुई है, लाइक अपनी कन्वर्जन के लिए। तो इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन। अगर आप अपना लाइक सैंपल पोस्ट कर रहे हो, अपनी या अपनी ऑडियंस बनानी है तो आप बना लो फॉर दैट पर्पस। कोई क्लाइंट वाला नहीं मिलता है। ठीक है भाई? और कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो दे कैन ड्रॉप द डीएम और रेज़ देयर हैंड्स। वी आर वेटिंग। टू हैंड्स आर लाइक रेजिंग। एक था अलीना का, मेरे ख्याल से हैंड रेज हो रहा है। मुझे बाकी किसी का उमन भी का नज़र भी नहीं रेज आ हो रहा रहा। है। मेरे ख्याल से या आप रिफ्रेश कर लेट्स लें, शायद आपको नजर आ जाए। ओके, ओके, आई विल डू दैट। हेलो, हाय उमंग। Hi guys, hi Deba, hi Sami. लो मैन। I don't have a question, but just a reminder for Sami to ask Sami. I hope you remember एक शो किया था हमने किसी दौर में. जी जी, मुझे याद है। Okay, तो उस वक्त के बाद I haven't seen you. I just realized कि recently you came into my feed and अभी मैं hardly एक महीना हुआ LinkedIn पे active है, and I realized कि you are doing some good work over here. So I just have a simple question. It's not even a question. Um, okay. So particularly, I've been doing content strategy for 3-4 years now. ठीक है. Since you know, I'm a filmmaker, graduated from the same institute, right? तो मैंने वहाँ से फिल्म मेकिंग में उससे पहले I switched my career and I went more into content side, not the filmmaking side of it. And I've been working with so many industries. To be precise, like let's say I'm working with 10 industries, or I have worked with them. मुझे एक चीज़ हमेशा confuse करती है, it's like you have to switch every time you are, as you suggested, you said, every platform has its own flavor. हमें हर प्लेटफॉर्म के साथ अपना वॉइस स्विच करना पड़ता है, अपना अपना टोन स्विच करना पड़ता है. ऑब्वियसली वी हैव टू कीप द क्लाइंट्स नीश इन माइंड, या उसके जितने भी चीज़ें. सो व्हेन राइटिंग फॉर लिंक्डइन, क्योंकि मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम फेस हो रही है कि समटाइम्स ना इट्स लिटिल हार्डर फॉर मी टू find my own voice in that particular niches I've worked with. Is there any exercise you do just to keep your head clear? Yeah, this is the voice I've been, क्योंकि I always try to add humor in my content. But lately I've realized कि मैंने अब तक जितना भी LinkedIn के लिए लिखा है, humor is missing in all of it. I always try to keep my writings fun. Even in my DMs, I'm talking to people and they mention like you have a good sense of humor, you write this and that, blah. But वो writing के वक्त LinkedIn पे आता ही है. So what do you suggest for this? Any idea? बहुत अच्छा सवाल है वैसे। यार सीधी-सी बात ये है कि हम जैसे बात करते हैं ना, हम वैसे ही जब तक नहीं लिखेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा, कुछ भी कर लें। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें अपने स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। वही बात है ना, हमारा काम ही दूसरों के जूते पहन के चलना है। लेकिन हमें कहीं न कहीं तो ये याद रखवाना है ना सामने वाले को कि मैं चलाता है ये जूता पहन के। तो दैट्स हाउ आपने यार देखें, ये थोड़ा-सा ट्रिकी है इस लिहाज़ से कि कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन अ बुक, आई कैन नॉट टेल इट्स नेम बिकॉज़ इट्स अ घोस्ट राइटिंग प्रोजेक्ट, बट इट्स मोर लाइक अगेंस्ट द, कह लें आप, वेस्ट जो है ना, या वेस्ट के जो सारे आइडियल्स हैं, और वो हमारे मुस्लिम्स के लिए वो एक हमने ख़ास एक वो बनाया है कि मुस्लिम्स या ट्रेडिशनल रिलिजियस ईस्टर्न पीपल हमारे लिए किस तरीके से जो है ना, वो लाइक पूरा वेस्ट का जो प्रोपेगेंडा है, लिबरलिज़्म है, वो कैसे नुकसानदेह है। उसका टॉपिक इस तरह का है। और वो एक मतलब कह लें बहुत सीधी, बहुत सीरियस बुक है। लेकिन वही बात है कि उसमें मैं जब लिखने बैठा तो मैं यही हो रहा था कि यार मैं बहुत
सेंसिटिव टॉपिक पे लिख रहा हूँ, इसके अंदर रिलीजन आएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएँगी और मुझे किस तरीके से मैनूवर करना चाहिए, क्या मैं बिल्कुल मतलब केयरफुल होके लिखूँ? एंड यकीन मानिए जब मैं केयरफुल होके लिख रहा था ना, मुझे अपना भी काम पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा था बिकॉज़ मैं इस तरह बात ही नहीं करता हूँ। और मैंने फिर क्या किया, मैंने थोड़ा-सा रिस्क लिया। आई रिस्क्ड बीइंग ऑफेंसिव एट टाइम्स और ऑफेंसिव ऐसे ही नहीं, फालतू में नहीं। मतलब ये कि थोड़ा-सा सार्काज़्म जो एक ख़ास पाकिस्तानी होने की अलामत है बाय द वे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तंज़िया किस्म के लोग हैं, I swear. ख़ासकर कराची वाले, ठीक है? हम हमारे नस-नस के अंदर है ये चीज़। और उस वजह से नहीं, हम यार असल में मसला है कि हम कराची में रहते हैं ना, तो हम हर कम्युनिटी से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें हर कम्युनिटी के स्टीरियोटाइप्स पता हैं और उनको कमबैक्स देना भी आता है, उनकी ज़बान भी समझते हैं, उनका रहन-सहन भी समझते हैं। तो कराची वाले इस लेवल से कह लो, मैं कह लूँ कि थोड़ा-सा उनको फ़ायदा होता है। और हमारी ये जो सार्कास्टिक नेचर है वो कुछ है, इस ज़मीन की मिट्टी में कुछ है। तो वो मैंने मैंने वो चीज़ लाना शुरू करी कि मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो अपना बचपन से ही रेनबोज़ की फ़ैसिनेशन थी कि कैसे कलर्स मिलके जो है वो इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बनाते हैं। और मुझे याद है मैंने ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा रेनबो देखा था जब मैं मॉन्टेसरी में था और मेरी टीचर ने मुझे जो है ना वो बाहर लाइन बनवा के हमें बच्चों को लेके गई थी, बारिश के बाद रेनबो निकला था और हमने देखा था, हम बोल रहे थे यार कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैंने कोशिश करी कि हर बारिश के बाद मैं बाहर गया और मैंने देखा कि यार मुझे रेनबो दिख जाए, लेकिन मुझे आज तक नहीं दिखा। ठीक है? तो वो फ़ैसिनेशन हमेशा से थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो फ़ैसिनेशन खत्म हो गई। अब मुझे रेनबोज़ से बहुत अनकम्फर्टेबिलिटी फ़ील होती है। अब मुझे रेनबोज़ हर जगह नज़र आते हैं। It's just इस like a तरीके से stopwatch मैंने man. उस चीज़ को लाइक लिखा। अब ये आई रिस्क बीइंग ऑफेंसिव एट लाइक मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे। लेकिन मेरा स्टाइल यही है। तो मैंने उस स्टाइल को लेके चला। मुझे डर लग रहा था कि क्लाइंट इस चीज़ को थोड़ा-सा वो करेगा कि यार यू आर बीइंग ऑफ द रूफ, कि मतलब समझ लो ना 20% अल्फाबेट्स आपने लेके रख लिए हैं और बाकी सारे जो बचे हैं वो हमारे पास हैं और वो भी कम काफ़ी नहीं पड़ेंगे बिकॉज़ अब 72 जेंडर्स आ गए। तो 72 तो अल्फाबेट्स भी नहीं है। वो इस तरह का ह्यूमर जो है ना उसको मज़े का लग रहा था। तो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के अंदर मैंने कराची वाले होने का सबूत दिया। पॉइंटलेसली ऑफेंड नहीं किया। उसमें भी विट था, विज़डम था। किसी की फीलिंग्स हर्ट करना मकसद नहीं था। क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को बैक भी कर रहा था विद साइंटिफिक स्टडी या जो भी मेरा टॉपिक है। बट यू हैव टू रिस्क लाइक आपने रिस्क करना है, थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ता है। अगर तुम्हें ह्यूमर नहीं मिल रहा ना, बिकॉज़ तुम वो ह्यूमर करना चाह रहे हो जो ह्यूमर सामने वाले को पसंद आ जाए। भाई ह्यूमर पसंद आने की शर्त ज़रूरी नहीं है, ह्यूमर आँखें खोलता है, मुँह पे आके थप्पड़ लगाता है। फिर आपको हँसी भी आती है, उसका कमाल है। तो तुम जिस स्टाइल में मज़ाक करना जानते हो और जो तुम्हें पसंद है, तुम जितना उसके साथ स्टिक करके कर सकते हो ना, इंस्टेड ऑफ केयरिंग कि उसको क्या पसंद आता है, नहीं आता। देखो इसमें आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है, रिविज़न भी आ सकता है, Yeah. लेकिन आपको मज़ा भी बहुत आएगा। और अगर सामने क्लिक कर गया ना, तो भाई फिर आपने उस क्लाइंट को कभी भी जो है ना मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ जाएगा। बिकॉज़ हर कोई यही चाह रहा होता है कि हम कुछ उनको अलग लाके दें और अलग कुछ जो है ना वो अंदर से ही आता है, वो इधर-उधर से नहीं आएगा। नेचुरल सेल्फ के अंदर रहते हुए जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। Exactly.